new chapter, that is Should Wizard Hit Mommy? This story is written by John Updike. This story deals with a child's view of the world and the difficult moral question she raises during the story session with her father. Jack, Joanna's father, had become accustomed to, or putting it more precisely, obligated to telling stories out of his head to his daughter Joanna during the evenings and Saturday afternoons. This tradition itself was now 2 years old, and Joanna had been 2 when it started. These stories were almost the same except for some slight variations. It started with a creative, usually named not creative, it's a creature usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, who had some problem and went with it to the wise owl. The owl directed him to go to the wizard, and who would solve this problem in exchange for a few pennies more than the creature had, and in the same breath would direct the creature to go to a place where he could find it. Then Roger Creature would be happy and would return home just in time to hear the train whistle that brought his daddy home back from Boston. So, the main theme of this story is the relationship of children with parents, and children's fantasies and messages of stories they bring with them affect children and sometimes make them critical. So, the theme of the story, as you can clearly understand by this line, is like relationship of children and parents, and the difference between child's perspective and children's perspective, and how like parents help to train them by narrating some small stories and try to inculcate in them values and ethics. So in this particular story, the main character is Jack. He is the protagonist of the story, and he's married man. His wife Claire is pregnant, and they have 4-year-old daughter Jo and 2-year-old son Bobby. Jo, she's Jack and Claire's 4-year-old daughter, and she's growing. She's a growing girl. As she is growing, she has begun to contradict things. Then Roger Skunk. Roger Skunk is the protagonist of the story that Jack narrates to Jo, and he is bullied for his foul smell, and he wants nothing more than to play with the other animals. So this is basically all about the characters, and let's begin with our story now. Before you read, here's a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story sessions with her father. ये स्टोरी हाईलाइट करती है पेरेंट्स की और बच्चों की रिलेशनशिप को, और कैसे जो पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे अपने बच्चों में वैल्यूज़ और एथिक्स इनकलकेट करते हैं. बच्चों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. तो ये स्टोरी उन सब चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से हाईलाइट करती है. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, Jack told his daughter Jo a story out of his head. जैसे मैंने बताया कि जैक जो है फादर, उसकी आदत थी अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाना, और जो की आदत थी पापा की स्टोरी सुनने के बाद वो सोती थी. तो उस दिन भी वो सैटरडे नैप की कोशिश कर रहा था जैक, और वो स्टोरी नरेट करना उसने शुरू किया. और हमेशा की तरह वो स्टोरी अपने हेड से, अपने आप से बनाकर, जैसे हम छोटे बच्चे जब भी हम लोग अगर रिकॉल करें अपना बचपन, तो आप सोचते हैं ना कि मम्मी पापा कितनी सारी स्टोरीज़ सुनाते थे अपने मन से बनाकर. कुछ स्टोरीज़ का मीनिंग होता था, कुछ स्टोरीज़ जो हैं कैरेक्टर्स बड़े अजीब से लगते थे, और वो ऐसे ही हमें वो वैल्यूज़ और एथिक्स इनकलकेट करने की कोशिश करते थे, हमारे को शेप करने की कोशिश करते थे. तो वही चीज़ जैक जो है वो जो के साथ कर रहा था. एंड दिस कस्टम बिगैन व्हेन शी वाज 2. और ये कहानी नरेशन का जो प्रोसीजर है ये तब से शुरू हुआ जब से जो है 2 साल की थी, एंड वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. और अब वो 2 साल की, और अगर हम बात करते तो पिछले 2 सालों से जैक जो है वो उसे स्टोरी सुना रहा था. तो इन टोटल शी वॉज 4 years ओल्ड, एंड हिज हेड
फेल्ट एम्प्टी। और 2 साल में इतनी सारी स्टोरीज़ उसने सुना ही थी अपनी बेटी को जो को, कि उसका जो है दिमाग अब बिल्कुल खाली हो गया था स्टोरी सुना सुना के। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड Roger. Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl, and the owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number of that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. And then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. And Jack described their supper and the story was over. So here if we try to recall the storyline, so इसमें जो मेन करेक्टर है वो हमेशा रॉजर होता था। रॉजर कभी चिपमंक होता था, कभी स्क्विरल होता था, कभी फिश बनता था, बट उसका नेम रॉजर ही रहता था, बट वो क्रीचर चेंज होता रहता था और उसको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। उस प्रॉब्लम के साथ वो वाइज आउल के पास जाता था, वाइज आउल उसे विज़ार्ड के पास लेकर जाता था और विज़ार्ड पैसे के बदले उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और हमेशा पैसे कम पड़ जाते थे। और वो कम पैसे कहाँ से मिलेंगे ये भी विज़ार्ड जो है वो रॉजर क्रीचर को बता देता था और वो रॉजर क्रीचर जब पैसे दे देता था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी और वो वापस अपने दोस्तों के साथ शाम तक खूब खेलता। और फिर एक विसल बजती, ट्रेन पे पापा बॉस्टन से वापस आ जाते और वो सब मिलकर बहुत अच्छा खाना खाते। और ये जो है स्टोरी लाइन हमेशा की तरह कॉमन रहती थी। प्रॉब्लम चेंज होती रहती थी बट ये स्टोरी लाइन जो है वो कॉमन रहती थी। वर्किंग हिज वे through this scheme was especially fatiguing on Saturday। और अगर बात करें ये पूरी स्टोरी नरेशन सेशन की तो सैटरडे को ज़्यादा ही फैटिगिंग हो जाता था क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती थी, ना जो को सोने की जल्दी होती थी, तो इसीलिए वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुट करती थी और वो स्टोरी जो है जल्दी ख़त्म नहीं होने देती थी और ये इसीलिए और ज़्यादा टायरिंग हो जाता था सैटरडे को story narration session, because Joe never feels asleep in naps anymore and knowing this made the right seem futile। और ये सारी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही बेकार लगती थी स्टोरी नरेशन की क्योंकि जो अब उतनी छोटी रही नहीं कि स्टोरी सुन के वो सो जाए। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, and their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle, and Jack asked, who shall the story be about today? और अब जो है वो उतनी छोटी नहीं रही थी, वो बेड भी जो है या बेड कवर जो वो यूज़ कर रही थी वो उसके पाँव से बाहर आने लग गए थे और उसकी नैप्स भी हैं वो इतनी आसान नहीं रही कि वो स्टोरी सुने और वो चुपचाप सो जाए। और ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और फैटिगिंग होता था और जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करती थी और जैक प्रे करता था कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये जल्दी से अपनी नैप ले ले जैसे ये बचपन में लेती थी जब वो इन्फेंट थी, जब 2 साल की थी, और जैसे अब उसका ब्रदर है वो 2 साल का है और वो चुपचाप बॉटल पीकर सो जाता है, ऐसे ही वो प्रे कर रहा था कि कुछ ऐसा मैजिक हो कि जो भी वो सो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं और अब वो बड़ी हो गई है और बहुत सारे सवाल करती है, तो जो जैक के लिए बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? जैक अब जो से पूछता है, अपना स्टोरी नरेशन सेशन शुरू करता है और वो पूछता है कि आज किसकी स्टोरी सुनना चाहोगी? रॉजर। जो स्क्वीज्ड हर आइज shut and smiled to be thinking. She was thinking. Her eyes opened. Her mother's blue skunk, she said firmly.
अब जब जैक ने पूछा कि अच्छा आज किसकी स्टोरी सुनोगी, तो एकदम से जो ने बोला रॉजर, और फिर सोचने लग गई स्माइल करके, आंखें बंद कर कर के रॉजर में इस बार क्रीचर कौन सा होगा, और इमीडिएटली उसने जो है आंखें खोलकर बोला स्कंक, अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। और जैक को हैरानी हुई कि ये स्कंक एनिमल जो है वो कहाँ से जो को पता लगा। फिर उसने रियलाइज़ किया कि ये उनकी नर्सरी स्कूल में ज़रूर पढ़ाया गया होगा, तभी जो को ये याद आ गया कि रॉजर अब स्कंक होगा, दिस न्यू एनिमल स्कंक। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। और अभी टेम्परेली वो, क्योंकि वो नया क्रीचर है, तो इसीलिए जैक बहुत एक्साइटेड था और एंथुसियास्टिक था स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए। तो वो स्टार्ट करता है। ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रीचर by the name of Roger Skunk and he smelled very bad। अब वो स्टार्ट करता है कि एक नया करेक्टर है, वो डीप डार्क वुड्स में रहता है, जंगलों में रहता है ये लिटिल क्रीचर रॉजर स्कंक, और उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बैड होती है। यस, जो सेड, जो कहती है यस, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. और अगर यहाँ पे बात करें अब स्टोरी लाइन की, तो he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him। ये प्रॉब्लम थी किसकी? रॉजर स्कंक की, जो जैक हाईलाइट करता है। और जो है बहुत ध्यान से वो स्टोरी जो है वो सुन रही है, और उसने कभी ऐसा फील नहीं किया अपनी लाइफ में कि दोस्त खेले ना, दोस्त हैं और दोस्त खेल नहीं रहे हैं, और वो सोच में पड़ रही है। और जैक अपने आप को कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड को कनेक्ट कर रहा है कि वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलेशंस, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अपने बचपन की ह्यूमिलेशंस को जो है वो याद कर रहा है। बचपन में शायद उसको कुछ प्रॉब्लम रही होगी, जो कि अगर हम नरेटर की हिस्ट्री के बारे में पता करें या उसकी लाइफ के बारे में पता करें, तो वहाँ हमें पता लगता है कि स्टैमरिंग प्रॉब्लम रही थी, और उसकी वजह से जो है नरेटर के साथ जो है वो दोस्त उसको ह्यूमिलेट करते थे और खेलते नहीं थे। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, आह, ओह, हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक। और बाकी जो टाइनी एनिमल्स हैं उस जंगल के, उस वुड्स के, वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसको स्टिंकी स्कंक बोलकर, स्टिंकी होता है खराब, डर्टी, बदबूदार, एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. The corners of the Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger Skunk's tears। और इस स्टोरी में जो रॉजर स्कंक है, रॉजर स्टिंकी स्कंक है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास है, लोनली है, उसके साथ कोई नहीं खेलता और वो रोता है। और जब ये सब बातें जो है जैक नरेट कर रहा है, तो जो का जो माउथ है वो ड्रूप कर रहा है उदासी की तरह, और वो अपने लिप्स को बेंड कर रही है फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ अ नोज एंड द कोर्स ऑफ वन ऑफ द रॉजर स्कंक्स टीयर्स। और उसे ऐसा लगा कि जैसे रॉजर स्कंक का टीयर जो है वो उसको भी फील हो रहा था। जो भी ये सब सुनकर इमोशनल हो गई। वोंट ही सी द आउल। अब वो आगे स्टोरी बताने की कोशिश करे, क्योंकि अब उसे वो स्टोरी लाइन तो याद हो गई है ना कि अगर रॉजर है, क्रीचर है, तो उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा? आउल के पास जाएगा। तो इमीडिएटली अपने पापा से पूछती है, वोंट ही सी द आउल, क्या वो आउल को नहीं मिलने जाएगा? शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस। और बहुत ही रूखे शब्दों में उसने अपने फादर से ये पूछा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. She was pleased with this movement. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on.
और वो जैक जो है वो समझ पा रहा था कि जो है वो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं आ रही बात कि रॉजर स्कंक के साथ कोई खेलता नहीं है और बहुत ही टेंस हो गई है। और जैक को कोई जल्दी नहीं थी अपनी स्टोरी लाइन को ख़त्म करने की, क्योंकि वो एक मैसेज कन्वे करना चाहता था जो को, तो इसीलिए वो बहुत ही धीरे धीरे अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। अब उसकी वाइफ जो है वो नीचे पेंट कर रही थी लिविंग रूम के वुडवर्क को। ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश कंट्री में उसे लिविंग रूम कहते हैं, और लिविंग रूम के फर्नीचर को वो पेंट कर रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ज़्यादातर काम जो है वो लोग अपने ही करते हैं, पेंटिंग या कारपेंट्री के भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे, या रिपेयरिंग की भी कुछ चीज़ें ऐसी, क्योंकि वहाँ पर लेबर काफ़ी कॉस्टली होती है। तो जैक जब स्टोरी सुना रहा था जो को, तो उसको नीचे चेयर के खिसकने की आवाज़ आई और वो डाउनस्टेयर जैसे ड्रैग कर रही है, और वो क्लियर कर रही थी, वो लिविंग रूम के फर्नीचर को पेंट कर रही थी, और वो चाहता था उसकी हेल्प करना। वेल ही वॉकड along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब वो रॉजर स्कंक की बात कर रहे हैं कि वो आउल के पास आता है। आउल जो है वो टिप टॉप ट्री में रहता है, उसके टॉप पे रहता है। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. और ये प्रॉब्लम रॉजर स्कंक अपनी जो है आउल को बताता है कि मेरे पास आने से सभी क्रीचर्स जो है वो डरते हैं या मुझे अवॉइड करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, और कोई मेरे साथ जो है नहीं खेलना चाहता, मुझसे दूर भागते हैं, क्योंकि मेरी स्मेल जो है वो इतनी बुरी है कि कोई मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। और आउल कह रहा है ये तो है, तुम्हारी स्मेल तो है ही बुरी, इतनी बुरी, व्हाट कैन आई डू, और मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। रॉजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। और रॉजर स्कंक जो है वो रोने लगता है। द विज़र्ड, जो शाउटेड। अब जो है उसको आदत हो गई है इस स्टोरी लाइन की, तो उसको एकदम से समझ आता है कि आउल अब उसको विज़र्ड के पास लेकर जाएगा, तो पहले से ही बता रही है विज़र्ड, जो शाउटेड एंड सैट राइट अप। और सोने की बजाय वो एकदम से जंप कर बैठ जाती है स्टोरी लाइन को कंप्लीट करने के लिए, अपने फादर की आगे बताना शुरू कर रही है वो स्टोरी। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक्स स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। और इतनी एक्साइटेड थी कि उसके बेड पे रखी हुई किताब जो है वो गिर गई। नाउ जो, डैडी इज़ टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जैक को इरिटेशन हो रही है कि वो कह रहा है कि जैक कहता है कि जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, क्या तुम्हें स्टोरी सुनानी है। नो यू मीन, तो जो कहती है नहीं तो आप सुनाओ मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। और जैक को बहुत ही इरिटेशन हो रही है, क्योंकि वो स्टोरी नरेशन जो है वो सुलाने के लिए कर रहा है, और जो है इतनी एक्साइटेड होकर वो बड़ी खड़ी होकर बैठ गई है, तो उसको बोलता है कि तुम लाई डाउन करो और सो जाओ। हर हेड relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go to see the wizard. और अब जो है वो आउल बोलता है रॉजर स्कंक को कि तुम विज़र्ड को जाकर क्यों नहीं मिलते। डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब वो स्टोरी लाइन के बीच में उसके बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, वो इंक्विजिटिव नेचर की होती चली जा रही है। आर मैजिक स्पेल्स रियल, अब उसको जानना चाहती है कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं, सचमुच में होते हैं। दिस वॉज अ नेम न्यू फेस जस्ट this last month, a reality phase. And when he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? अब जो है वो बड़ी हो रही है और उसके बहुत सारे सवाल जवाब हैं, और वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती है सब पर, वो एक दूसरे से चेक करती है। अगर मम्मी कुछ कहती है तो वो पापा से चेक करती है, और अगर पापा कुछ कहते हैं तो वो मम्मी से चेक करती है। जैसे कि मैजिक स्पेल की बात करें तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मैजिक स्पेल होते हैं, और अगर भगवान की बात करें तो क्या भगवान होते हैं। सो दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली।
और जैक उसको बहुत ही कर्टसी से आंसर करता है इस बात का कि हाँ मैजिक स्पेल्स होते हैं लेकिन स्टोरीज़ में होते हैं. शी हैड मेड हिम miss a beat in the narrative. The owl said, "Go through the dark woods, under the apple trees, into the swamp, over the creek." What's a creek? अब आउल जो है वो डायरेक्शन बता रहा है रॉजर स्कंक को कि उसको विज़र्ड कहाँ मिलेगा. तो विज़र्ड कहाँ मिलेगा? डार्क वुड्स में मिलेगा, एप्पल ट्री के नीचे मिलेगा, और वो स्वॉम्प मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी पानी और गीली मिट्टी कह सकते हो आप जिसे. और ओवर द क्रिक, और क्रिक क्या है? एक a little river over the creek, and there will be the wizard house. और वहाँ पर एक पेड़ की उसके ब्रांच के ऊपर जो है तुम्हें विज़र्ड का हाउस मिलेगा. a little river over the creek and there will be the wizard's house. And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. और अब जो है रॉजर स्कंक जो है वो विज़र्ड के घर के बाहर आ गया था जैसे कि उसको आउल ने बताया, और उसके घर के बाहर जो है उसने खटखटाना शुरू किया उसके दरवाजे को. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. और जैक ने जो है जैसे नॉक नॉक की आवाज़ निकाली, ऐसे नॉक नॉक की आवाज़ निकाली तो जो भी एक्साइटेड हो गई कि अभी जो है विज़र्ड बाहर आएगा. एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड, "Ah, what's this? Watcher want? You smell awful." The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow weaning through his eyes, which felt for the interval rheumy. He felt being an old man suited him. अब जैक की जो आदत थी, और कह सकते हैं कि जैक का जो फेवरेट करेक्टर था वो था अलग अलग साउंड्स निकालना स्टोरी नरेशन के टाइम पे, जो कि अच्छा इफ़ेक्ट देता है स्टोरी को. और जैक का फेवरेट करेक्टर इस पूरी स्टोरी में विज़र्ड था, और विज़र्ड की आवाज़ निकालना उसे बहुत अच्छा लगता था. उसे ऐसा लगता था कि विज़र्ड जो है वो जो ओल्ड करेक्टर की जो आवाज़ है वो उसको सूट करती है, और वो उसी तरीके की टोन बनाकर जो है स्टोरी में भी बोलता था. "ओह, व्हाट्स दिस? व्हाट यू वांट? यू स्मेल ऑफुल." The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. और ये इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको बहुत ही अच्छे लगते थे देने अपनी स्टोरी को, और उसमें से स्पेशल इफ़ेक्ट विज़र्ड की साउंड का. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फेवरेट करेक्टर या फिर फेवरेट पार्ट क्या था स्टोरी नरेशन का जैक का, तो उसमें ये विज़र्ड वाला पॉइंट आपने मेंशन करना है. "I know it," Roger Skunk said, "and all the little animals run away from me." The enormous wise owl said, "You could help me." "Ah, well, maybe. Come on in. Don't get too close." Now, inside Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap, because the wizard did not have any cleaning lady. और इधर विज़र्ड के घर की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो सारी चीज़ें जो है बहुत ही क्लमजी तरीके से पड़ी हुई हैं, धूल मिट्टी है उसमें, और बहुत सारी डिफरेंट फनल्स हैं, और उसमें से अलग अलग तरीके का धुआं निकल रहा है, और ये सब चीज़ें जो हैं एक विज़र्ड के घर का लुक दे रही हैं. और वो इस तरीके का जो लुक है वो मेंशन करती है इसमें कि क्यों विज़र्ड के वहाँ क्लीनिंग लेडी नहीं आती है. और वाई बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन. विल ही डाई? और जैक कहता है नहीं उसके वहाँ नहीं आती है. तो जो पूछते हैं कि क्यों नहीं आती है क्लीनिंग लेडी, क्योंकि वो ओल्ड मैन है. अब वो ओल्ड मैन है तो जो कि एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्या वो मरने वाला है? उसके हिसाब से जो बूढ़ा हो जाता है वो मर जाता है जल्दी, तो वो अनदर क्वेश्चन पुट करती है अपने फादर से. "नो, विज़र्ड्स डोंट डाई." "वेल," ही रमिश्ड around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said, "Roses." अब
जैक जो है अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, विज़र्ड कभी मरते नहीं हैं। और उसके बाद वो स्टोरी लाइन पे वापस आता है और वो मैजिक वॉन्ड की बात करता है, जादू की छड़ी की बात करता है। रॉजर स्कंक जो है वो बैड स्मेल है उसकी, और उससे पूछता है कि कौन से स्मेल चाहोगे। तो रॉजर थॉट एंड सेड, और रॉजर ने बोला कि रोजेस की स्मेल। जो खुश हो गई इस बात से। यस, गुड, जो सेड स्मगली। जैक फिक्स्ड हर with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. Elderly irritable voice मतलब बुज़ुर्गों की जो आवाज़ है वो निकालना उसका फेवरेट पार्ट था। और अब जो है वो जैक को एक जगह पे बिठा कर जो है वो एल्डरली इरिटेबल वॉइस में वो बोलना शुरू करता है। Abracadabra, Huckus Poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo. और ये मैजिकल स्पेल जो है वो बोलता है और इसके साथ बिल्कुल शांति हो जाती है उस जगह पर। एंड ही पॉज्ड एज अ rampant expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife's feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden he whispered, sorry. The whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roses, Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. और अब जो है वो जो की तरफ देखता है तो जो के एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब जो है वो रोज़ेस की स्मेल हो गई है। और वो खुशी जो उसकी वाइफ को कॉकटेल पार्टीज़ में आती है, वही खुशी अभी वो जैक जो है वो जो की आंखों में देख रहा था कि जो बहुत ही एक्साइटेड है कि सारी जगह पर रोज़ेस की स्मेल हो गई है और रॉजर स्कंक बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसकी वो प्रॉब्लम जो है बैड स्मेल की वो सॉर्ट आउट हो गई है।